How to control your intense emotion instantly. Emotions such as anger, insecurity, anxiety. How to control it. Today we will discuss this in this video. So watch the video till the end. Hi beautiful souls, this is Vithika. Welcome to my channel. So we all go through intense emotion at some point throughout our day. कभी गुस्सा आता है, कभी एंजाइटी अटैक आता है, कभी वे ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी ऑफेंसिव हो जाते हैं. तो ये ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दिस इमोशनल आउटबर्स्ट, how you can instantly control them. Let's begin with number 1. Whenever you feel angry about something, it is mostly because of dismissal of your thoughts or your perspective. It can happen because of dislike. You didn't like something, so you felt anger. It's because of something is not going according to your will, so you can feel anger. It can be someone is giving you anger, that's why you're feeling angry. These are the reasons why you can feel angry mostly. What do you need to do? Every time this fountain of anger energy hits you, simply pause. Pause yourself. The moment. Pausing your mouth. Pause it. Don't speak up instantly. Because when you pause, you will think clearly. And when you think clearly in that very moment, you will respond with logic. And you will not respond just to react. So most of the time when you're angry or you're angry, you react. So here is the thing. This is a very important tool. If you just pause, you will only give response with logical answer or with something which makes sense. But if you react, you yourself will be logical like the person who made you angry. Number 2, sudden insecurity. When you feel suddenly insecure about something, it could be about a job or a relationship or anything, finance, remind yourself instantly. See, you have to practice all these things, right? When you get to know about this, you have to practice. So, just instantly remind yourself that I accept myself the way I am. I appreciate myself the way I am. जब भी हम insecure feel करते हैं ना किसी चीज़ को लेके, इसका सबसे important factor होता है कि when we don't feel we are not good enough. या फिर I'm not good enough for this person or this job. I may lose this person, I may lose this job, I may lose this friend. Why? Because maybe I'm not good enough, maybe I'm not doing my best, maybe he or she likes somebody else. तो ये कब होता है? जब सेल्फ वर्थ क्लियरेंस नहीं होता है. और इसको कैसे ठीक किया जाए? एक्सेप्ट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ. मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, जो जो चीज़ें बुरे हैं आई विल वर्क ऑन इट, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज ऑल्सो. टेल इट टू योर सेल्फ ऑन दैट वेरी मोमेंट. इनसिक्योरिटी के टाइम पे खुद को बोलो कि बेटा तुम जैसे हो ना अच्छे हो, इतना बुरा भी नहीं हो तुम, ठीक है सिचुएशन आ रहा है हैंडल कर लेंगे, लेकिन तुम अच्छी हो यार, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी फ्लॉज में भी ब्यूटीफुल विथ योर फ्लॉज इज वेल. ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड दिलाओ. तो इनसिक्योरिटी के मोमेंट पे जो रश ऑफ इमोशंस आ रहे हैं, इनसिक्योर होने के, रोना आ रहा है, वो आप नहीं करोगे. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव डन टू योर सेल्फ, टू पीपल, टू योर रिलेशनशिप, टू योर फैमिली. क्रेडिट दो अपने आप को उस टाइम पे. इनसिक्योरिटी बहुत कम हो जाएगा. और इसको प्रैक्टिस करते रहो. एक दिन में नहीं होगा. वीडियो को देखने के बाद दिमाग में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, करते 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 हो जाएगा. नंबर 3, एंग्जाइटी और बीइंग एंग्शियस. किसी सिचुएशन में हो, सडनली एंग्शियस फील हो रहा है, फीलिंग एक्सट्रीमली एंग्शियस इमोशन, टेक अ डीप ब्रेथ. 1-2 बार 2 बार 3 बार एंग्जाइटी आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करके और बोलो प्रेजेंट में हूँ. प्रेजेंट की बात से सोचो. एंग्जाइटी कब आती है? फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को सोच के एंग्जाइटी होगा कि नहीं होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगी कि नहीं रहेगी, जॉब खो ना दूँ, पैसा चला ना जाए, EMI दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी. हर चीज़ देखो फ्यूचर का बात है. हर चीज़ फ्यूचरिस्टिक थिंग है.
तो बोलो अपने आप को कि बेटा तुम ना अभी इसी मोमेंट पे खड़े हो, तो फ्यूचर का सिनारियो सोच के जो एंग्शियसनेस आ रहा है ना, उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करते हैं। एंग्जाइटी को बोलो भाई जाओ, वो फ्यूचर का चीज़ है। These are external thing, right? This is not you. Your anxiety is not you. You're a beautiful human being. इसको खिला पिला के इतना बड़ा मत बनाओ। उसको बोलो बेटा तुम फ्यूचर का चीज़ हो, फ्यूचर में रहो, अभी मैं इस मोमेंट पे हूँ, आई एम ऑन द नाउ। Number 4, suddenly when you feel rejected or you feel abandoned. कभी कभी होता है ना कि आप बहुत रिजेक्टेड फील करते हो, कोई आपका पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, या फिर किसी ग्रुप में, सोशल ग्रुप में आपको नहीं बुलाया गया है, या फिर किसी फ्रेंड ने डिच किया है। आप रिजेक्टेड फील जब करते हो, आप अबांडन की मुझे कोई छोड़ के चला जाए, इस तरीके का जब इमोशंस आता है, रिमाइंड योरसेल्फ और टेल योरसेल्फ और एक्नॉलेज दैट आई नो दिस फीलिंग। जो फीलिंग अभी आ रही है ना, ये रिजेक्शन फेस करते हुए, या फिर पुश बैक, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हो रिलेशनशिप में पुश बैक फील करते हैं कि ये थोड़ा पुश बैक कर रहे हैं हमको, बोलो कि अपने आप को ना एक्नॉलेज करो ऐसे कि I know whatever feeling is happening because of this rejection, it sucks. This feeling really sucks, but I will not let this feeling consume me. मैं इस feeling को अपने आप को consume करने नहीं दूंगी। ठीक है, rejection आ रहा है, इसको मैं I will check on it, but इस feeling को मैं अपने आप को consume करने नहीं दूंगी। इस feeling से मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगी। ये गंदा है feeling, लेकिन I will not become sad on this. I will not let it consume me, make me sad, make me cry, make me feel my worth. देखो आप खुद अपनी खुद की सख वाली फीलिंग, जो शिट वाली फीलिंग को आप रिजेक्ट कर रहे हो। आपने रिजेक्शन फेस किया, उस मोमेंट पे जाके जब आप अपनी इस फीलिंग को रिजेक्ट करोगे, इमोशन कंट्रोल कर पाओगे। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, every rejection is a redirection, is a projection. Rejections किसी भी चीज़ में, जॉब, लाइफ, रिलेशनशिप, किसी में हो, ये आपको एक डायरेक्शन देती है। This is actually giving you a better direction, which you later realize, और क्या बोलते हो कि उस टाइम वो हुआ था ना, इसलिए मेरी लाइफ में ये सब अच्छा हो रहा है अभी, थैंक गॉड वो हुआ था। लेकिन उस मोमेंट पे आपकी वो फीलिंग आपको खा जाती है, वो फीलिंग आपको सैड बना देती है। उस फीलिंग को रिजेक्ट कर लो, जीतोगे तो तुम। Okay, before moving on to the last point, if you like my content and if you're finding it valuable, do subscribe my channel if you haven't yet, if you're watching for the first time. And I post videos every Monday to Friday. Some of the other content will help you out. So do subscribe and like this video. It means a world to me when you like my videos. Also, if you want to watch travel content, if you love watching travel videos, I'm a solo travel vlogger. I've been traveling for last 8 years solo, and you can check out those videos also. I've given the link in the description. Wanderlust vlog by Bitika. You will find my content really entertaining, really soothing. Do check it out. Do subscribe that channel too. Now, last but not least, number 5. When you feel the intense emotion of overwhelming, मतलब कुछ हो गया ना आपकी लाइफ में, आप बहुत ओवरवेल्म फील करो, क्या करूँ? अच्छा चीज़ों में भी ओवरवेल्म हो जाते हैं हम, कुछ बुरा चीज़ हो जाता है उसमें भी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। मतलब क्या करूँ, दिशा नहीं आ रही, मतलब कहाँ जाऊँ मैं अभी। जब ऐसे एक लॉस्ट वाला फीलिंग होता है ना, वो आपकी ओवरवेलमिंग फीलिंग होता है। कभी कभी खुशी में भी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो व्हेनेवर यू फील ओवरवेल्म, दैट इमोशन ऑफ ओवरवेल्म, टेक अ पेन एंड पेपर और मोबाइल का नोट, बस लिख लो, हाँ ये हो रहा है इसलिए मैं ऐसे फील कर रही हूँ। आप तब ना स्कैटर्ड हो जाते हो, दिमाग तब स्कैटर्ड हो जाता है। सडनली क्या आ गया, कोई बुरा सिचुएशन, या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, या फिर कोई बैड न्यूज़, या फिर बहुत अच्छा न्यूज़। सडनली आप ऐसे क्या हो गया, ओवरवेल्म हो जाते हो। तो ओवरवेल्म मतलब क्या होता है कि आपकी थॉट्स, आपकी सेंसेस स्कैटर्ड हो जाती है। इस टाइम इस इमोशन को आप सिर्फ एक ही चीज़ों से कंट्रोल कर पाओगे, और वो है लिख लो। सारी चीज़ों को एक जगह लिखो कि ये हुआ इसलिए मैं ये सारी चीज़ें फील कर रही हूँ, सांस नहीं ले पा रही हूँ, या फिर ऐसा हो रहा है। जब लिखोगे, जब लिखना स्टार्ट करोगे, अवेयरनेस आना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा मैं स्कैटर्ड हो गई सडनली, ओके आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक। तो ओवरवेलमिंग के टाइम पे मोबाइल निकाल के लिखना स्टार्ट करो, ऐसा हो गया। कितनी फास्ट हम लिखते हैं ना,
जब टेक्स्ट करते हैं तो मोबाइल पे भी नोट निकाल के फटाफट लिखना स्टार्ट करो कि इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, लिखो. द मोमेंट यू कंप्लीट राइटिंग एवरीथिंग ना, उस मोमेंट ओवरवेलमिंग के टाइम पे you will see your senses will calm down. You will start feeling composed. Things will come down. Things will come to a place, and you will be able to control this emotion like a pro. Yeah. अब देखो करना पड़ेगा. ऐसे बैठ के सिर्फ वीडियो देखने से होगा नहीं. अगर मिस हो गया तो फिर से देख लो वीडियो, लिख लो, मोबाइल पे लिख लो. और जब भी ऐसा फीलिंग हो, मोबाइल खोल के अपना नोट्स खोल के मेरी डिवाइन हीलिंग का नोट्स देख लो कि ऐसा करना है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. मैं इतना भी कुछ वू मैजिकल विचक्राफ्ट नहीं बताती हूँ. मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बताती हूँ जो आपको काम आए. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इमोशंस आर ऑल्सो एनर्जीज, एंड एनर्जी ऑलवेज वॉन्ट टू मूव. ऑलवेज रिमेंबर, emotions are also energies, and energies cannot stay stable. It want to move always. So when you are stuck, which is actually your emotions get stuck, you actually start feeling stress, falling apart, and this is when actually your energy is telling you to move. And this is how you move, by taking conscious actions. To leave a comment below your feedback about this video. And yes, to subscribe my channel if you haven't yet. I'll see you guys in the next video. Take care. Thank you for watching my video. Bye-bye.